Hello, candidates. I am CFA Karan Singh, lead faculty at the Wall Street School for all levels of CFA. Now, the CFA exams are fast approaching, and I've been getting a lot of phone calls about the revision strategy, the plan for the last week or so. So, here's a very small and crisp video which encapsulates all the do's and don'ts which you should stick to for this last 1 week. Please note, this video would be completely applicable for all the L1 folks as well as the L2 folks. So please watch till the end. Thanks a lot. Now, the preparation strategy for last 1 week, 5 days, 1 week that I'm discussing is good for both L1 and L2. As I've said, दोनों के preparation में कुछ खास फर्क नहीं होना चाहिए. The fact of the matter is that the same 10 subjects are there in L1 and the same 10 subjects are there in L2 as well. The only difference is, yes, L2 का level higher है और उसमें case study form में questions पूछे गए हैं. But then the preparation piece of that, the preparation piece is not really impacted. The change is in the delivery. आपको exams में case study आएगा या single question आएगा, that's the difference. Preparation wise there is no difference at all. That is why we will be discussing for the next 7-8 minutes or something. We'll be discussing something which is common for both L1 and L2 folks. Last 7 days, last 5 days strategy. ठीक है, सुनिएगा. मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2-4 दिनों में बहुत दफा. The questions are: first, sir, should we have secret sauce and should we refer to secret sauce in these 5 days? Secret sauce is presumably a book जिसमें 50, 80, 100 पेजेस में पूरे के पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डले होते हैं. कुछ वैसा पढ़ना चाहिए क्या, या फिर ऊपर से मेन टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए क्या? दैट इज द क्वेश्चन. पहला, सीक्रेट सॉस ऑब्लिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए क्या? द सेकेंड क्वेश्चन हैज बीन, सर, शुड वी फोकस ऑन थरो रिविजन सेट अगेन, or should we rather stick to solving a lot of tests and do maybe one revision and that should do? The third question that has been asked is that we feel that practical portion बहुत important है because आपने उसको ज्यादा समय दिया है, and we tend to focus on theoretical piece lesser. Although I have studied the theoretical piece very efficiently, but in these last days I want to focus more on practical aspect because theoretical pieces से कहाँ ज्यादा questions आएंगे. ये 3 चीजें मुझे बार बार पूछी गई हैं. सबसे पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं and then we'll move ahead. First, आपको कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए? The very simple answer is that please stick to your own notes. अगर आपने खुद से हैंड नोट्स अभी तक के अपने प्रिपेयर किए, nothing like it, please study those. If not, if you have referred to a coaching prep provider's notes like, let's say, Wall Street schools, like some other faculties, like some other coaching institutes, please stick to that. अगर आप किसी बुक से पढ़ाई करते हुए आए, अगर आपने कोई क्लासेस नहीं ली हैं, और let's say you have referred to some foreign author provider, some book from foreign author provider which is not a C-book, I'll say please stick to that. Please उसे भी change ना करें. The way this human mind functions is that your visual memory is very strong. आपको पेज पलटने से पहले पता होता है कि आपने राइट साइड के टॉप पे ऐसा कुछ टिक मार रखा है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क किया है, इसे कट किया हुआ है बिकॉज दैट इज वे टू इजी फॉर यू. प्लीज डोंट सरप्राइज ऑब्लिक शॉक योर माइंड इन द लास्ट मोमेंट. ऐसा करना बिल्कुल और बिल्कुल बकवास स्ट्रैटेजी होगी. इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर रादर देन समथिंग गुड हैपनिंग फॉर यू. प्लीज ऐसा मत करें. अपने नोट्स पढ़ें, दैट शुड सफाइज. आपको जितनी देर, जितना एफर्ट, जितना समय अपने 200 पेजेस के नोट्स पढ़ने में लगेगा, उतने ही समय आपको लगने वाला है 40 न्यू पेजेस ऑफ समरी पढ़ने में. व्हाई स्टडी 40 पेजेस ऑफ समरी व्हेन यू कैन डू द होल 200 पेजेस ऑफ डिटेल्ड रिविजन्स वंस अगेन? तो इसीलिए आपके खुद के नोट्स विल बी एनी डे अ लॉट बेटर. ये कुछ भी सिलेक्टिव स्टडी, सीक्रेट सॉस स्टडी इज अ बकवास मेथड. प्लीज डोंट स्टिक टू दैट. सेकंड, सर, शुड वी सॉल्व मोर क्वेश्चंस या फिर वी शुड डू रिविजन्स? आई विल से प्लीज स्टिक टू रिविजन्स. क्वेश्चंस क्या काम करते हैं? क्वेश्चंस टेंड टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव स्टडीड. Oblique, they tend to tell you the new concepts. I'm saying the time for new concepts is gone. If you want to reinforce the concepts, why do some selective study? Rather than that, focus on doing 2 complete revisions. I'm saying 2 complete revisions. मेरे हिसाब से in last 5 to 6 days 2 revisions हो जाने चाहिए बहुत प्यार से. Ideally, in my classes, I've always suggested last 6 days should tantamount to 3 revisions. अगर आप रिवर्स प्लानिंग करें तो एग्जाम से एक दिन पहले एक रिवीजन, उसके पहले 2 दिनों में एक रिवीजन, और उसके पहले के 3 दिनों में एक रिवीजन. मीनिंग 3 + 2 + 1, 6 डेज में 3 रिवीजन हो जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है.
मान लेते हैं कि नहीं, यू आर सेइंग नहीं सर, इट इज नॉट रियली पॉसिबल फॉर अस, वी आर एफिशिएंट बट नॉट एफिशिएंट इनफ टू नॉक ऑफ 3 revisions in 6 days, सॉरी। I'll say okay, no worries at all. आप अगर लास्ट 5-6 days में 2 revisions कर पाते हैं, इवन दैट वुड बी वंडरफुल। वर्स्ट केस सिनेरियो आप बोल रहे हैं नहीं, प्रोबेबली इवन दिस इज समथिंग विच माइट नॉट बी अचीवेबल। माय हम्बल सजेशन वुड बी, आप अपने करिकुलम को 2 हाफ्स में डिवाइड करें। वो सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जिसमें जनरली आपका एक्यूरेसी 85-90% प्लस रहता है। सेकेंड, दो सब्जेक्ट्स इन विच you have done the hard work that you could have, but still you are not very well satisfied in terms of the accuracy, या फिर even if you are hitting the accuracy, the desired accuracy of let's say an 80% in 85%, but still you find some friction in it, meaning there would be subjects जो आपको मन में ऐसा लगता होगा कि काश ये हमसे एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, और फर्क नहीं पड़ता अगर ये 2-3 सब्जेक्ट्स में कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी पूछेगा तो मुझसे सब बन जाएगा। These are in your mind मैनेजेबल एरियाज, इजी एरियाज, ऑब्लिक पेन एरियाज। जो इजी एरियाज हैं, अगर आप इसका 1-1.5 रिवीजन भी कर लें, 1-1.5 मीनिंग एक कंप्लीट रिवीजन कर लें, और उसके बाद इनमें अगर कहीं पे कुछ फ्रिक्शन आता था तो उसको दोबारा पढ़ लें, तो 1-1.5 रिवीजन फॉर दीज। एंड जो भी पेन टॉपिक्स हैं, जो भी डिफिकल्ट एरियाज, जो भी ग्रे एरियाज हैं आपकी प्रेप में, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द कैंडिडेट्स। someone who has an economics background will feel very comfortable in economics vis-a-vis someone जिसका accountancy background है, उसको economics अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये पेन एरिया सबके यूनिक होंगे, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। जनरली जो मैंने देखा है, फिक्स्ड इनकम, क्वांट, इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स, ये 3-4 एरियाज हैं जिसमें जनरली कैंडिडेट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। आई विल से जो भी आपके पेन एरियाज हैं इनमें 2 रिविजन्स, जो भी आपके कंफर्टेबल एरियाज हैं इसमें एटलीस्ट 1 रिविजन। दिस शुड बी द वे अहेड फॉर यू। द नेक्स्ट पीस इज एथिक्स। एथिक्स इज वन सब्जेक्ट जो मुझे लगता है एग्जाम से 2 दिन पहले प्लीज ना पढ़े। व्हेन आई से ना पढ़े, आई एम नॉट सेइंग leave it completely. All I'm trying to say is that if you want to give one more thorough revision, one more read of C book, candidate resources, this is the time. Let's say अगर आपका 23rd को एग्जाम है तो आप अभी ये चीजें पढ़ लें। लास्ट 3-4 डेज में, 2 डेज 3 डेज में सी बुक से वन ऑन वन पेज का रीड करना for ethics piece would be a monumental waste of time. Please understand, when you study corporate finance oblique let's say FSA oblique equity या ऐसा टाइप का कोई भी सब्जेक्ट, तो आप एक tangible input लेके जा रहे हैं, ये okay that this is the formula, this is how a question is done। ethics में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ethics में ज्ञान है, अब ये ज्ञान आपने वैसे ही 4 दफा पढ़ा हुआ है, अब एग्जाम से एक दिन पहला इसका पूरा का पूरा रीड करना would be a monumental waste of time। Please don't do that। The second thing that I was saying is that there would be a very clear-cut categorization in your mind regarding the pieces in which you are very comfortable versus the pieces जिसमें आपको थोड़ा friction आता है, थोड़ा pain होता है। My humble suggestion would be that this should be the only categorization in your mind। The reason I'm emphasizing this over and over again is that I've been asked, sir, I want to focus more on practical aspects। मैंने theoretical piece पढ़ लिया। You might consider these theoretical topics to be less important। The reason is that आपने practical topics के पीछे 5-5, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा लगाया एक टॉपिक में, विज़ा-वी आपका theoretical topic 2 घंटे में हो गया। तो in your subconscious mind you tend to think that practical piece से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और थियोरेटिकल से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर दोज ऑफ अस हु आर इन L1 माइट थिंक कि अगर लेट्स से 20 क्वेश्चंस ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाने तो शायद 2-3 पूछ लेंगे थियोरेटिकल से। फॉर L2 फोक्स दे माइट थिंक कि हमारे केस स्टडी जो कि 6 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस का है, 6 क्वेश्चन की केस स्टडी में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे और 1 क्वेश्चन थियोरेटिकल आ जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं पता है, सब सिर्फ तुक्केबाजी है। You are thinking that this is important and this is not important। How do you know that? ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। The only categorization that can be in your mind is I'm very comfortable in that, तो इसका कम रिवीजन भी चलेगा। I'm less comfortable in these subjects, so इसका और ज्यादा रिवीजन करते हैं। Please don't tend to think ये प्रैक्टिकल है इसको अच्छे से कर लो, ये थियोरेटिकल है इसको छोड़ दो। नहीं, जो थियोरेटिकल आप छोड़ के जाएंगे, ट्रस्ट मी, उसी से क्वेश्चन आएगा। That is how you should think your exam will behave। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक लेट्स से अगर आपके एग्जाम में 5 दिन 10 दिन 12 दिन रह रहे हैं तो आई थिंक यू वुड बी स्लॉगिंग एनी विच वेज, बट स्टिल आई हैव बीन आस्क्ड कि सर वी आर एबल टू स्टडी फॉर 8-10 आवर्स अ डे, डू यू थिंक दिस इज इनफ एंड स्टफ। मेरा सजेशन रहेगा, लास्ट एक हफ्ता है जिनके लिए, प्लीज आप लोग
अगर दिन में 14-15 घंटे पढ़ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और करना ही क्या है इस टाइम। once you are through, once you have given the test, then you are a free bird, enjoy all you want, but at this point of time please try to give it somewhere around 14-15 hours a day। मेरे ख्याल से 10-12 घंटे का रिवीजन, पुराना प्रेप को पढ़ना, 2-2.25 घंटे में आप एक नया टेस्ट ऑप्ट कर लें, एंड 1 से 1.25 घंटे में अगर आप उस टेस्ट को एनालाइज कर लें, यस ऑब्वियसली +-20% का डेल्टा रहेगा इन सारे के सारे टाइम जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता है वो ये है that before entering the exam hall you should know for sure this is the subject I want to go for first। let's say अगर आप FSA में कंफर्टेबल हैं तो वो करिए, डेरिवेटिव में कंफर्टेबल हो तो वो करिए, whatever be the most comfortable subject please try doing that। जब तक के पेन पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते थे वो इंडेक्स अवेलेबल होता था और उसमें आप डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे जा पाते थे। आई हैव बीन टोल्ड दैट द वे इट हैपेंस नाउ इज दैट यू कैन स्टिल टॉगल बिटवीन द सब्जेक्ट्स। तो आपके लिए आइडियल ये रहेगा कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये तय कर लें दैट these 3 pieces are या these 4 subjects are where I'm most comfortable at, so I will try to do these subjects as my first step and then I'll proceed ahead। ठीक है ना। next thing is that you should either not be on social media or you should be very very selective on social media। मेरे ख्याल से WhatsApp, LinkedIn, न्यूज़पेपर, YouTube, बेसिकली आपको दुनिया की कोई खबर नहीं होनी चाहिए इन लास्ट 1 वीक। डिसअपियर, अपने आप को एक रूम में बंद कर लें, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज रिटन इन योर बुक्स एंड दैट्स इट, दैट शुड बी गुड। एक चीज है कि अगर अभी कुछ डाउट आ भी रहा है, अभी पढ़ के अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप उसका एक बार सॉल्यूशन देख लें और कोशिश करके वहां से मैनेज कर लें। ऐसा ना हो दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन टू वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स एंड लूजिंग आउट ऑन द बिगर पिक्चर। एक और चीज जो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ वो ये है कि आई थिंक देर आर 2 schools of thoughts in this। देर आर पीपल who will say that do as many papers as possible now। I will say अगर आप पेपर्स कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है दैट इट माइट, लेट्स से if you are giving 2 tests 3 tests now, or let's say you are giving 1 test, 1 complete test, AM session, PM session on a daily basis, you will lose out on the number of hours that you can allocate to the revision piece। उससे ये होगा कि आपका रिवीजन कम हो रहा है और आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं। यस, क्वेश्चन सॉल्व करना भी अपने आप में रिवीजन है, बट देन दैट इज सिलेक्टिव। नो, उसमें हो सकता है चैप्टर 1 का टॉपिक 1 पूछे और टॉपिक 2, 3, 4 ना पूछे, फिर टॉपिक 5 पूछे, तो ओवर देयर यू आर डूइंग सिलेक्टिव रिविजन्स। व्हाई डू सिलेक्टिव रिविजन्स व्हेन डूइंग फुल रिविजन्स इज पॉसिबल? यस, देयर इज अ मेरिट। पीपल विल आर्ग्यू दैट आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपका आई मीन स्पीड बेटर हो रहा है, आपका एग्जाम सेंस बेटर हो रहा है। आई बिलीव दैट इफ यू आर एबल टू डू सिंगल सेशन टेस्ट, मीनिंग आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 घंटा एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं एएम सेशन, अगले दिन इसी टेस्ट का पीएम सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई थिंक ऑल दीज बेनिफिट्स यू आर स्टिल गेटिंग। देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड गिविंग एन एग्जामिनेशन। नो, अगर आपसे एएम सेशन एक दिन हो रहा है, पीएम सेशन एक दिन हो रहा है, दिन में 2 घंटा टेस्ट दे पा रहे हो, तो सर्टेनली एग्जाम दे पे आप 4 घंटा भी टेस्ट दे पाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन वुड बी एडवाइजेबल। वन लास्ट पॉइंट, देर आर फोक्स जो कि 23rd को L1 दे रहे होंगे, एंड देन देर आर फोक्स जो कि 29th को L1 दे रहे होंगे। जनरली व्हाट आई हैव सीन इज दैट पीपल हु आर अपीयरिंग ऑन द लेटर डेज tend to discuss a lot with their friends who have already appeared on the earlier days, asking कि पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, कौन सा टॉपिक एरिया इजी था, डिफिकल्ट था। प्लीज ये सब में ना पढ़े, इससे यू आर जस्ट पॉल्यूटिंग योर ओन माइंड। इट्स प्रिटी सिंपल। 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपने पिछले 6-8 महीने में पढ़ रखे हैं, आपके पास सारे के सारे नोट्स हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड सिट with a very clear mind in your examination। This was about the detailed discussion for last 5 days, 1 week, whatever, for the L1 and L2 candidates। Let's move to the next piece now। Let's say अगर आपका एग्जाम 30th से है, 38 to 3rd L2 candidates के लिए, if your exam is from 38 to 3rd, या फिर even for those candidates who are giving their L1 but let's say their exam is on 29, तो अगर 10-12 दिन आपके फेयरली रह रहे हैं, I'll say divide these 12 days into 2 halves, last 5-6 days and 1 week prior to that, so 7 days का एक साइकिल and then 5 days का लास्ट साइकिल। लास्ट 5 डेज में तो आपको वही करना चाहिए जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपके पास 7 डेज एक्स्ट्रा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव प्लान टू डू 1 रिविजन, just 1 revision in these 7 days, but this revision has to be bloody thorough। मतलब आप अपने सारे के सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो
आपने शायद मेंटेन किए होंगे क्वेश्चंस जो कि लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, या फिर जो क्वेश्चंस आपने अपने टेस्ट में गलत किए थे, एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट कर लें. द वे यू शुड डू इट इज दैट यू हैव 7 days एट योर डिस्पोजल. आप 5 हाफ्स में डिवाइड कर लें. लेट्स से एक मुश्किल, एक इजी सब्जेक्ट, या फिर एक बड़ा, एक छोटा सब्जेक्ट एक दिन में करें. मैंने अपने हिसाब से आपको ये डे 1 टू डे 5 की कैटेगराइजेशन दी है, बट दीज सब्जेक्ट्स माइट वेरी वेल डिफर फॉर यू. ठीक है, ये हो गया 5 दिन की बात. आपके पास तो टोटल 7 days है. जो बैलेंस 2 days हैं, आई वुड हैव रिलीजियसली फोकस्ड ऑन 2 things. पहला, ऑल द थियोरेटिकल टॉपिक्स. प्रैक्टिकल टॉपिक्स को आप लोग पिछले 6-8 महीने से बहुत इज्जत देते आए हैं. 2 दिन सिर्फ और सिर्फ बैठ के जितने भी थियोरेटिकल एरियाज हैं एक बार वो पढ़ लिए जाए बहुत अच्छे से. अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लमैटिक एरियाज रहे हैं आपके लिए तो वो देख लें इन 2 दिनों में. अगर बाय चांस आपने सब सारी प्रिपरेशन अच्छी कर ली और 2-4 थ्योरी के टॉपिक्स इधर उधर रह गए, लेट्स से यू हैव बीन इन अ ग्रोइंग जॉब, आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग थी, आप उतना समय नहीं दे पाए प्रिपरेशन को, आपका प्रैक्टिकल पीस पूरा कवर्ड है, बट 2-4 थ्योरेटिकल टॉपिक्स रहते हैं. प्लीज डोंट थिंक कि यू आर द ओनली वन जिसके टॉपिक्स कुछ रह रहे हैं और आपका एग्जाम पास होने का चांस कम हो जाता है. नो, आई डोंट थिंक दैट दैट इज द केस. आई थिंक देयर आर मेनी फोक्स आउट देयर हु विल क्लियर देयर एग्जाम्स, और आज के दिन पे उनके कुछ छोटे छोटे इधर उधर थ्योरी के टॉपिक्स रहते होंगे. यू कैन स्टिल गिव इट वन लास्ट शॉट और एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ लें. अगेन, अगर आपको लगता है 5 days आर नॉट इनफ तो इसी को ही 7 days में एक्सपैंड कर लें. If you think that this is enough and we can manage this in 5 days, then focus on these topics for the next 5 days. Plus 2 days में आप theoretical topics से बहुत ज्यादा ध्यान दें, या फिर अगर कोई specific pain areas थे तो उन पे ध्यान दें, या अगर कुछ theoretical topics छूट गए तो वो अभी 1-2 दिन में कंप्लीट कर लें. ऐसा ना हो कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके 2 टॉपिक्स रहते हैं और आप उसकी फ्रेश रीड कर रहे हैं, वो तो बहुत गलत हो जाएगा. आप एक बार इन्हीं दिनों में नेक्स्ट 7 days में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, वो बहुत बढ़िया रहेगा. Last, अगर if you are big on tests, if you are someone who says that I want to appear for more tests, then I think this is the week where you should give more tests. आप इस वीक में 3-4 टेस्ट दे दें, that should be enough. Yes, I say this again, I've seen a lot of people give a very valid argument saying कि ज्यादा टेस्ट करना is more prescribed rather than doing the revisions. I do respect their opinion, but then I think differently on this. मुझे लगता है नहीं, I would rather focus on giving more revisions rather than appearing for more tests. In just couple of minutes, I want to share a very small anecdote with you. I very categorically remember when I was giving my L2 exams, मैंने around 10-12 दिन पहले एक complete test कर लेते हैं. Before that, my accuracy was 85-90% के आसपास, but 10-12 दिन पहले जब एक टेस्ट दिया तो it was horrendous for me. I was not able to do well in at least 3-4 subjects. But then I don't even have a lot of time left. मैं 8-10 दिन में क्या कर लूँ? तो I got so puzzled and so demotivated that I couldn't study for a day or two. Somehow I did gather the courage. God was very kind. Parents were very supportive. I could gather the courage somehow or the other. And I thought कि चलो ठीक है, अब मैं कोई भी फुल टेस्ट नहीं दूंगा. Yes, मैं सेशन टेस्ट दे दूंगा, 2-2.25 घंटा बैठ के लिख लूंगा एक टेस्ट. I will just focus on revising whatever I've done and doing as many questions जो कि पहले किए थे उनको दोबारा करना, या फिर उनमें जो गलतियां हुई थी उसको एनालाइज करना. God's grace, it worked for me, but it did teach me a very big lesson as well कि last 10 days में पेपर attempt करना can be counterproductive to your morale in case you don't do very well. So मैं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से भी मैं सजेस्ट करता हूं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ज्यादा बेहतर होगा अगर आप रिविजन्स करें. So this is all at my end. If you still have any queries, please feel free to reach out to me. Thanks a lot. I'm sure you'll do wonderfully well in your examinations. All the very best. Take care. Bye-bye.